Hello friends. In a previous lecture, we completed group number 15. After preparation of group number 15, at last you have to solve illustration number 7.9, in text 7.11, 7.12 and exercise questions 7.12 to 7.16. In group number 15, recently one new element is added after bismuth, and that is moscovium. So according to code number, it's atomic number you can decide, and its electronic configuration also you can write. Okay, here already in 16 group I have added it. Another question asked by student that how can we decide acidic order of oxo acids of phosphorus? So you can decide oxo acids acidic order of phosphorus by finding oxidation state of phosphorus first, and then the phosphorus having more oxidation state is more acidic with respect to the phosphorus having less oxidation state. Suppose we have 3 oxo acids. In first oxo acids, the oxidation state of phosphorus is +3. In second oxo acid, the oxidation state of phosphorus is +4. And in third oxo acid, the oxidation state of phosphorus is +5. So +5 is more acidic than the +4, and +4 is more acidic than the +3. Like that you can arrange the oxo acids of phosphorus in an acidic order. So let us start group number 16. Group number 16 called chalcogens. In group number 16 there are 6 elements: oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium and livermorium. And general electronic configuration is uh, inert gas, inner core, inert gas, and ns2 np4. This n is the principal quantum number 227. So why they are called chalcogens? Here chalcogens definition is given. These all elements are like brass and like compound of mixture of sulfur and its allotrope with copper. Okay, sulfur are 20 types allotropes are there, and it mixture with copper, its appearance, its mixture is called chalcogens. Brass is called chalcogens. So all the ores appearance is like this, so they are called chalcogens. Okay, so when we start this p block, at that time I told you write down electronic configuration of all elements of group number 16. Once again I have given you the code number and everything. Do yourself the practice. Okay, अब आगे चलते हैं. So first question of group number 16, explain periodicity in physical properties of group number 16. टेक्स्ट बुक में टेबल भी दिया है इन सब प्रॉपर्टी का, आप उसको भी साथ में रख के इसमें कंपेयर कर सकते हैं. तो एटॉमिक रेडियस में रेगुलर पीरियोडिसिटी है. डाउन द ग्रुप एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस कोवेलेंट रेडियस इंक्रीजेस. Ionic radius means in group number 16 oxygen possess -2, so then after sulfur is also -2. The ionic radius down the group, as atomic number increases, the ionic radius also increases. This is also regular trend. Then after ionization enthalpy, you know that the energy required to remove the electron from valence orbital. सो ये ट्रेंड भी रेगुलर है. Down the group as atomic number increases, as we know that the screening effect increases, the ionization enthalpy decreases because last electron not that much attracted with a nucleus, so less energy required to remove down the group. और एक बात यहाँ पे competitively most important, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप नंबर 16 की ग्रुप नंबर 15 से कम है. हालांकि अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक ट्रेंड ग्रुप नंबर 16 की ग्रुप नंबर 15 से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन नहीं है.
तो रीज़न इसका ये है कि ग्रुप नंबर 15 की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो स्टेबल है, NH2 NP3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल। तो ये ट्रेंड रेगुलर ऐसा होना चाहिए, ये जो नीचे है ना ऐसा रेगुलर ट्रेंड है दोनों दो ग्रुप के बीच में, और ऐसे मिलता है। तो इसका रीज़न ये है कि ग्रुप नंबर 15 है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब आगे चलते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन। काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ने, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की ज़रूरत पड़ती है ग्रुप नंबर 16-17 में, कि ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। और यू नो दैट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मीन्स द एनर्जी रिलीज्ड और एब्सॉर्ब्ड, majority released when we add electron in a outermost orbital, outermost orbit. आयोनाइजेशन एंथैल्पी जनरली हम पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में जनरली हम नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं। तो डाउन द ग्रुप एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव, ठीक है। और डाउन द ग्रुप टेंडेंसी टू फॉर्म नेगेटिव आयन ऑल्सो डिक्रीजेस। इसका सीधा मतलब ये होता है कि एज डेल्टा EGH इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव, मोर टेंडेंसी टू फॉर्म नेगेटिव आयन, electron gain enthalpy less negative, less tendency to form negative ion. So as atomic number increases down the group, this becomes less negative, means less tendency to form negative ion. यहाँ पे एक exception है, the electron gain enthalpy of oxygen should be more than the electron gain enthalpy of sulfur. But what observed here, electron gain enthalpy of oxygen is observed less negative with respect to the electron gain enthalpy of sulfur. ऐसा क्यों है? तो ये रीज़न हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पीरियोडिसिटी चैप्टर में जब ये शॉर्ट नोट मैंने ली थी कि एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इट्स अ पीरियोडिक ट्रेंड्स, तो उसमें एक रीज़न आपको मिलेगा। आप 11th स्टैंडर्ड की बुक को देख लीजिएगा, उसमें ये रीज़न बहुत अच्छी तरह से 3-4-5 पॉइंट में समझाया हुआ है। तो ये 11th स्टैंडर्ड का पीरियोडिसिटी चैप्टर में से क्यों ऐसा है वो आप, तो इसमें नहीं है, 17 ग्रुप में भी सेम प्रॉब्लम है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन द क्लोरीन, in place of fluorine should be more negative because down the group it becomes less negative। तो पहला एलिमेंट वो ज़्यादा नेगेटिव होना चाहिए, तो नहीं है। तो दोनों रीज़न 11th स्टैंडर्ड की बुक में है। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो ये ट्रेंड भी रेगुलर है, एज डाउन द ग्रुप एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीधा रिलेशन है नॉन मेटालिक कैरेक्टर के साथ, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का रिलेशन है मेटालिक कैरेक्टर के साथ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर। तो ये एकदम क्लियर है कि डाउन द ग्रुप एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है। उसका मतलब कि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम हो रहा है। अब आगे चलते हैं, देख लेते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जो ऑक्सीजन इज द सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आफ्टर फ्लोरीन, वी नो वेरी वेल फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड। तो हम पूरा ग्रुप जो देखे, ऑक्सीजन और सल्फर दोनों नॉन मेटल है, सेलेनियम और टेलेरियम मेटेलॉइड्स है, पोलोनियम जो है मेटल है। और ऑल एलिमेंट शोज एलोट्रोपी। इसमें ऐसा नहीं है कि सब एलोट्रोपी दिखाते हैं। एलोट्रोप आपको पता है, फॉस्फोरस का 3 एलोट्रोप, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, येलो फॉस्फोरस, ठीक है। इसी तरह यहाँ हर एक एलिमेंट एलोट्रोपी दिखाता है। यहाँ पे मैंने LV लिवर मोरवियम नहीं लिया है क्योंकि ये मैन मेड आर्टिफिशियल एलिमेंट। अब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, फिर भी यहाँ मैंने लिख दिया है कि डाउन द ग्रुप एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, यहाँ से यहाँ मतलब कि ऑक्सीजन से टेलेरियम तक मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, टेलेरियम टू पोलोनियम मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। यहाँ जो है रेगुलर ट्रेंड नहीं है, इसमें काफ़ी रीजंस होते हैं। कोई उसका डेंसिटी, इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो सब देखते हैं। उसका सॉलिड
स्टेट का कंस्ट्रक्शन, मतलब कि कौन सा इसका कंस्ट्रक्शन है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, काफ़ी फैक्टर्स इसमें काम करते हैं। और डाउन द ग्रुप एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, ये भी ऐसे ही है। ऑक्सीजन टू टेलेरियम बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, टेलेरियम टू पोलोनियम बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। तो अगर हम देखें टेबल में, टेक्स्ट बुक में, तो ऑल प्रॉपर्टीज़ का जो चेंजेस है, ये 6 प्रॉपर्टी मैंने, तो आपको ऑक्सीजन से सल्फर तक जाओगे तो उसमें मोर डिफरेंस दिखाई देगा, ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज होगा। और सल्फर के बाद लास्ट तक जाओगे तो स्मॉलेस्ट, ज़्यादा इतना इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिखाई देगा। ये क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन हो जो है वो स्मॉलेस्ट है ग्रुप का, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इसलिए ये सब दिखाई देता है। और ये चीज़ हम एक बार फिर डिस्कशन करेंगे कि ऑक्सीजन शोज एनोमलस बिहेवियर विथ रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप। ओके, और बस आज इतना ही। आज अब हम अकरेंस के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।